requested you to come at very early morning. I'm really sorry because I have to fly to Kolkata at 11:30. So I generally do not speak to media. Yeah, but of course, I request. Yes. So, responsibility of media. Though I generally do not speak comfortable speaking to media, realize this. You call me and then I avoid because I'm not very comfortable talking. But spread a message. I seek your cooperation. So that we should speak to media, and we can get a lot of information from media. So we have been working on this input for a long time from headquarters and local NCB unit. So we have been able to which has its tentacles spread over. So we have cracked this network, broken this network. Now we have to 10 persons who were involved in distributing have got information that there are other networks who are involved in trafficking in a big way. Now I'll talk about the present case that we have done. सर हिंदी में आप बोलेंगे? पहले हिंदी में बोलिए। एक सूचना पर छुपाए गए लगभग 50 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। यह नेटवर्क एक कार्टेल द्वारा चलाया जा रहा था। हमने कार्टेल के सरगना सहित 2 लोगों को इस संबंध में पहले भी इस कार्टेल के कुछ सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया था। सरगना पहले भी एक मैन गिरफ्तार हो चुका है। ये जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुंबई के निवासी हैं। जैसा मैंने पहले बताया, प्रारंभ में गुजरात में एमडी बिक्री के संबंध में एक जानकारी जामनगर द्वारा साझा की गई थी। सूचना के आधार पे एनसीबी और नेवल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक साथ मिलकर काम किया और संयुक्त रूप से 3 अक्टूबर को गुजरात के जामनगर क्षेत्र में कार्टेल के 4 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी एमडी जब्त किया। इनमें इन गिरफ्तार 4 व्यक्ति सोहेल गफ़ार महिदा है जो 2016 से 2018 तक उसने यूएसए और लिथुआनिया में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उस 2001 में था। व्यक्ति 8 से जमानत पर है। प्रारंभिक जांच से पता दोनों बराबर मुंबई और एक ही कार्टेल से है और प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि से करीब हमने 60 बरामद किया गया है और इस 60 किलो का संबंध शायद उस कार्टेल से है जिसको अभी 2 महीने पहले एमडी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, फुल फॉर्म मेफेड्रोन है जो एक और आमतौर पर मियो के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलेंट एक न्यू साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और इसकी व्यवस्था और इसका जो हमने बरामदगी की है ये 60 किलोग्राम, इसका इंटरनेशनल करीब के करीब आता है। ये मैंने हिंदी में आपको जानकारी दी। आप मुझे इंग्लिश में आपको बता दूं। एक्टिंग ऑन CB recovered located in SB Path area of Mumbai
In this connection, we have arrested 2 persons, including the kingpin of this cartel. This kingpin was earlier arrested in a Coffee Posa Act in 1995 for smuggling of Mandrax tablets. Both the arrested persons are from Mumbai. Initially, an information regarding the sale of MD drug in Gujarat was shared by our sister agency Naval Intelligence Unit of Jamnagar. This input was developed by Naval Intelligence and NCB together, and working jointly, both the agencies were able to seize around 10.350 kg of MD, and 4 persons were arrested. And this cartel was active in Jamnagar area of Gujarat. Acting further on this input, we have arrested 2 persons from Mumbai 2 days back, 1 day back, and one of the persons that was arrested in Jamnagar is Sohail Ghaffar Mahida. He was a pilot with Air India from 2016 to 2018. He has received flying training from San Antonio, Texas, USA and Lithuania. And the other person is a history seeker. His name is Muthu Pichai Das. He was arrested by DRI for trafficking of 350 kg Mandrax tablets in 2001. He is out on bail since 2008. Preliminary investigation has revealed that both the seizures has common linkages. Incidentally, seized 10.35 kg was also supplied by the same source in Mumbai to Jamnagar. Preliminary investigation also has revealed that this recovery of around 60 kg of MD have possible connection with the seizure that was made by Mumbai police 2 months back. MD, as some of us know, is mephedrone. It's a stimulant drug and commonly known as Mio, and is classified under neopsychotropic substances. And the commercial quantity of MD is 50 grams. According to international street price of the drug seized is approximately 120 crores. सर सोहेल के बारे में थोड़ा सा और बताइए, ट्रेनिंग के लिए कौन से एयरलाइन में था, अभी भी है, पहले से नहीं है? No. पूरा नाम जरा एक बार His name is Sohail Ghaffar Mahida. No, he was working with Air India from 2016 to 2018. He is no more with Air India. सर इंटरव्यू में पता चले क्यों वो एयर इंडिया के पायलट की जो अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी, व्हाई दिस ड्रग कार्ड? He was fired for medical reasons. He has left Air India because of medical reasons. He started from lower cadre and सर he ये reached to कार्रवाई का pilot. लोकेशन क्या रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है सेंटर से हुई है, मतलब इसकी टीम जो है, इसकी जानकारी हेड ऑफिस में हुई, वहाँ से हुई। कार्रवाई का लोकेशन क्या रहा है, पहले ये बता दीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये NCB टीम और नेवल इंटेलिजेंस ने जो हमारे पास इनपुट आई थी, जॉइंटली हमने इस पे काम किया था, और इसको NCB हेडक्वार्टर टीम, NCB मुंबई टीम, NCB गुजरात एंड नेवल इंटेलिजेंस ने साथ मिलकर काम किया है, और हमें जामनगर में भी सफलता मिली है और मुंबई में भी सफलता मिली है, और हम इस इन्वेस्टिगेशन दोनों केसेस में हमारी जारी है, और में और आशा है कि हम इस पूरे नेटवर्क को का सफाया कर देंगे। कार्टेल का जो सरगना है ऑलरेडी हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, और जैसा मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क था, इस जो सप्लाई नेटवर्क इस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसको भी हम बहुत जल्द जो भी इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में संपर्क लोग हैं उनको हम अरेस्ट मतलब ये करें। बोल सकते हैं कि ये जो जानकारी आई है आपको जो है नावल वहाँ से आई है?
क्या लोकल यूनिट सर यहाँ होते हुए भी इतना बड़ा मामला है सर, ये जानकारी क्या लोकल यूनिट को क्यों नहीं? लोकल यूनिट भी काम कर रही थी और इसमें जब हमारे पास जानकारी आई तो उस पर हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया है और ऐसा नहीं था कि लोकल यूनिट को इसकी जानकारी नहीं थी। इसमें जब भी एक बड़ा केस होता है और जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट में नेटवर्क संपर्क होता है तो इसमें टीम्स साथ में मिलकर काम करती है, तो किसी एक टीम को इसके बारे में क्रेडिट देना ठीक नहीं है। मुंबई से जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनकी जानकारी सर का नाम बता दें। जी, नाम जो है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। मैं इसके बारे में एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जो कार्टेल है इसने करीब 225 केजी एमडी मार्केट से और विभिन्न जगहों से उसने प्रोक्योर किया था और उसने 225 केजी एमडी डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्केट में। इस 225 में हमने 60 केजी उससे रिकवरी की है, बाकी उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात। अभी इस बारे में सारी सूचनाएं जो है जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। सर एक चीज़ साफ है कि इन 2 स्टेट्स में इतनी भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है। कंज्यूम डेफिनेटली अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कंजम्पशन है। सर जी से एक सवाल है, अभी पिछले 10-15-20 दिन में देखा जाए तो ड्रग का जो सप्लाई मुंबई में काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है। कस्टम्स पकड़ रहे हैं, एनसीबी पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर टाइम पे ही ड्रग्स इतने क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? विदिन अ मंथ अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े कार्टेल्स आप लोगों को इसका त्योहार का मंथ है ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये त्योहारों के टाइम पे ही ऐसा हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस नेटवर्क ने 225 केजी एमडी का कारोबार पिछले 2.5-3 साल में किया है। सो ऐसा मानना कि फेस्टिवल टाइम में ही ये बन रहा है या फेस्टिवल टाइम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सही नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपने बोला कि नेवल इंटेलिजेंस का आपका पूरा ऑपरेशन हुआ है। अभी भी नेवल के जो ऑपरेशन है वो कोची में चल रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कोची। इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि क्या ऑपरेशन है, कितना ड्रग्स पकड़ा गया ओवरऑल? मैं यहाँ से आने वाले हैं। मैं यहाँ से कोचिन जा रहा हूँ, वहाँ पे सारी जानकारी इस बारे में इन्फॉर्मेशन तो है कि कोची में भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। थोड़ा सा जी, इस ऑपरेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं सर अभी एट दिस स्टेज। लेकिन इज ऑपरेशन द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ एनसीबी एंड नेवल नेवी का भी ऑपरेशन है। कोची में क्या मिला है? ये सारी जानकारी मैं वहाँ जाके दूँगा। बट अब एट दिस स्टेज आई कैन ओनली से that this operation has no connection with Cochin. सर ये बनाया कहाँ पे जा रहा था? कोई फैक्ट्री थी या घर में बनाया जा रहा था? Yes, ये एक लैब था जो कि मुंबई स्थित है, था, अब वो लैब नहीं है। उसी की जो कार्रवाई थी, जो वीरा भांजा में फैक्ट्री थी वहाँ से पकड़ा गया था, उसी का हिस्सा ये 200 केजी जो एमडी है उसी में बना हुआ है या अलग है? सेकंड एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई जो बस्ट किया था, उसी का आप करीब हिस्सा बता रहे हैं। अभी ये सारी बना था उसी का ये हिस्सा है या अलग है? अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो अभी डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन यस जो इन्होंने जो प्रोक्योर किया है शायद वही है। सर मुंबई कस्टम ने जिस दिन कार्रवाई आपकी हुई है 5 से 7 बोट जब्त की है मुंबई कस्टम ने, क्या छोड़ दें आप? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्रवाई की जो रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त हो गई है? अगर वक्त पे हम कंसंट्रेट करें, एनसीबी छोटे केसेस पेडलर्स पे ध्यान दे, ये एनसीबी मराठी होने की फायदा नहीं।
अच्छा, एन सी बीला नेव्हल इंटेलिजन्स जामनगर युनिटकडनं एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आणि त्याच्या बेसिसवर एन सी बी हेडक्वार्टर्स ऑपरेशनल ब्रांच, एन सी बी मुंबई, एन सी बी अहमदाबाद आणि नेव्हल इंटेलिजन्सनी जॉईंटली काम केलं. पहिला सीजर आम्ही तो झाला 3 तारखेला या महिन्याच्या आणि आम्ही त्या केसमध्ये 4 लोक अरेस्ट केली, 1 मधनं 3 मुंबईतनं. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही फर्दर इंटेलिजन्स आणि बाकी इनपुट्सवर काम करून आम्ही कालच्या डेटमध्ये अराऊंड 50 kg परत MD जप्त केलं आणि त्या कारवाईमध्ये 2 माणसं आम्ही अरेस्ट केली. एक त्याच्यातला किंगपिन आहे आणि तो ऑफिसपासून एक थोडा दूरवर सांगतंय की मुंबई पोलिसने जी त्याच्याशी ह्या नेटवर्कचा संबंध आहे. पण आता हे खूप बेसिक आहे की याच्यावर जास्त काही भाष्य केलं जाऊ शकत नाही इन्व्हेस्टिगेशन. आणि MP हे सगळे जे आहेत त्यातले बरेचसे इन्स्पेक्टर किंवा आधी त्यांना शिक्षा झालेली आहे. त्यातला 2016 ते 18 एअर इंडियाचा पायलट होता, आता तो नाही आहे. नंतर एक जो आहे मुथ्थू नाव आहे त्याचं, ARIच्या 350 किलो मँड्रॅक्स टॅबलेटमध्ये 2001 अरेस्ट झाला होता आणि पडलेला तो कॉफेपोसामध्ये पण ॲक्युज्ड आहे, म्हणजे त्याच्याला शिक्षा झालेली आहे. तर आत्तापर्यंतच्या कारवाईची ही माहिती आहे. MD माहितीच आहे की हे स्टिम्युलंट ड्रग म्हणून वापरलं जातं याच्यामध्ये. 5 मुंबईत. सर ही लायबिलिटी होती काय नेमकं? ही एक MD बनवलं जायचं, पण याच्या काम करतोय कारण कालच अरेस्ट झालेली आहे. तो मुंबईचाच आहे. त्यांनी सुरुवात लोअर स्टाफपासून केली. एक्झाम पास होऊन एअर इंडियामध्ये पायलटमधनं ट्रेनिंग घेतलेलं आहे पायलटचं, पण काही हेल्थ रिझन्समुळे त्यांनी पायलटिंगचा जॉब सोडला. वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर. कहानी टीवी में बनेगी कैसे बनेगी थोड़ा टाइम. हाँ पढ़ शेयर करेंगे. 120